السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله۔ وقال الله تعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، میرے آواز کو سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج 4 فروری 2022 بروز جمعہ مسجد گونڈا اہل حدیث کرنول بعد نماز مغرب تا عشاء چلنے والے اس پروگرام میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے اتباع سنت واجب ہے، نبی کی سیرت میں اتباع رسول کیا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے انحراف کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر یہ واضح اعلان کر دیا کہ جو شریعت میں نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر روانہ کیا ہے، اس کی اتباع تم پر کتنی ضروری اور واجب ہے۔ اس کو ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اس پر چلنے والے گویا اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کے راہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ان سے روگردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے، راہ فرار اختیار کرنے والے، یہ کیسے کافر ہیں اور کیسے ان لوگوں کا انجام بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا کئی جگہ پر وضاحت فرمایا۔ سورہ مائدہ کی 92 نمبر آیت 92 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے سے بچو. جو شخص تم میں سے منہ پھیر لے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لے گا، یہ جان لو میرا رسول واضح طور پر اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی دوسری جگہ 31ویں آیت میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے نہ صرف محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت سے پتہ یہ چلا اللہ کی محبت نبی کی اطاعت میں محظور ہے. اللہ کی محبت نبی کی اتباع میں پوشیدہ ہے. اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت کرے، نبی کی سنتوں کی مخالفت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، یقیناً وہ اللہ کا ہے نہ اللہ اس کا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے. سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی پیروی کرے گا، جو رسول کی راہ کی اتباع کرے گا، گویا وہ اللہ کی اتباع کرے گا، گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا نمونہ اللہ نے اپنی اطاعت کے موافق بتایا. جو میرے نبی کی بات مانے گا گویا وہ اللہ کی بات مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا مگر وحی الہی کے جانب سے ہر بات وہ اللہ کی جانب سے کرتا ہے. جو اللہ کی نبی کی بات مانا گویا اس نے اللہ کی بات مان لیا. سورہ محمد 33 نمبر آیت 33 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر کمی پیشی نہ کرو. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ نے کہہ دیا یاد رکھو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر کمی پیشی کرو گے اللہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا. کوئی اللہ کی اطاعت کرے نبی کی اطاعت نہ کرے، کوئی صرف نبی کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کہتا ہے مکمل اس کے اعمال کو برباد کر کے ہم رکھ دیں گے. لازم و ملزوم ہیں یہ دو چیزیں، اللہ کی اطاعت. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی 59ویں آیت میں بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کو دین پر چلنے کے معاملے میں ذرہ برابر کمی پیشی ہو جائے، ڈاؤٹ آ جائے، کنفیوژن آ جائے، تم قرآن کی جانب لوٹو، حدیث کی جانب لوٹو. ایک عالم کہتا ہے ایسا کرو، دوسرا عالم کہتا ہے ویسا کرو. ایک مولوی کہتا ہے رجب کا مہینہ ہے، رجب کے کنڈے منانا چاہیے، دوسرا عالم کہتا ہے رجب کے مہینے میں کوئی کنڈے کوئی جھنڈے نہیں منائے جائیں گے. اب پبلک کرے تو کیا کرے، عوام کیا کرے؟ ایک عالم کہتے ہیں رجب کا مہینہ ہے، امام جعفر صادق کے کنڈے منائے جائیں گے. دوسرے عالم کہتے ہیں رجب کے مہینے میں کوئی کنڈے کوئی جھنڈے ثابت نہیں کرنا چاہیے. پبلک کیا کرے؟ ادھر سنے تو کنفیوز، ادھر سنے تو کنفیوز. محرم کا مہینہ آ گیا،
इधर के उलमा कहते हैं मुहर्रम में पंजे बिठाना चाहिए, झंडे उठाना चाहिए, अवाला लगाना चाहिए। इधर उलमा कहते हैं कोई तासिया नहीं बिठेगा, कोई अवाला नहीं लगेगा, कोई आग नहीं सिलगेगी, कोई ढोल पाशा नहीं बजेगा, कोई झंडे नहीं लगेंगे, कोई आग में नहीं कूदेगा। अब पब्लिक करे तो क्या करे भाई? रबीउल आखिर का, रबीउल अव्वल का महीना आ गया। एक उलमा कहते हैं नबी के नाम की विलादत मनाई जाए, नबी के नाम का जुलूस निकाला जाए, मक्के मदीने के कार्टून बनाकर रोडों को ब्लॉक करते हुए बड़े बड़े डीजे बाजे बनाकर जुलूस निकाला जाए। दूसरे उलमा कहते हैं नबी के पैदाइश पर कोई ऐसा जुलूस नहीं निकालना चाहिए, कोई ऐसा कार्टून नहीं बनाना चाहिए, असलाफ से ये साबित ही नहीं है। पब्लिक करे तो क्या करे? एक उलमा कहते हैं ऐसा करो, दूसरे उलमा कहते हैं मत करो। ये पब्लिक क्या करेगी भाई? इधर भी सुने कंफ्यूज, उधर सुने कंफ्यूज। रबीउल आखिर का महीना आ गया। एक उलमा कहते हैं पीराने पीर अब्दुल कादर जिलानी की 11वीं मनाना चाहिए। दूसरे उलमा कहते हैं पीराने पीर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई अब्दुल कादर जिलानी पीराने पीर नहीं है। बल्कि अब्दुल कादर जिलानी का बकरा भी नहीं कटेगा, हमारे नबी के नाम का बकरा भी नहीं कटेगा। कोई जानवर अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा नहीं किया जाएगा। अब ये कहते हैं करो, वो कहते हैं मत करो। पब्लिक करे तो क्या करे? कंफ्यूज। शाबान का महीना आया, रजब का आ गया अभी, अब रजब के बाद आएगा शाबान। शाबान के महीने में एक उलमा कहते हैं बड़ों के फातिहा दिलाई जाएगी, बड़ों की रूहें आएंगी, उनके मनपसंद खाने पकाए जाएंगे, उनके अलीदा मलीदा चढ़ाया जाएगा, उनके मलीदे पे फातिहा खानी होगी, ऊद का धुआं डाला जाएगा, उनके खबरों पे जाके फूल चढ़ाकर उनको फातिहा खानी पेश की जाएगी, बड़ों की ऊद डाली जाएगी, बड़ों की फातिहा पेश की जाएगी, उनके रूहों का इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरे उलमा कहते हैं कोई रूह एक बार मर गई तो दुनिया में वापस नहीं आती, किसी बड़ों का कोई फातिहा खानी नहीं होगा, किसी रूहों का आने का अकीदा नहीं रखना चाहिए, कोई नन्हे बड़े की ईद नहीं मनाना चाहिए। पब्लिक करे तो क्या करे? एक कहते हैं करो, दूसरे कहते हैं मत करो। पब्लिक कहां जाएगी? साल के 12 महीने में 12 ईदें लोगों ने बना ली। सुन्नत क्या कहती है? हमारे नबी का तरीका क्या कहता है? अल्लाह के नबी की जिंदगी को हम उठा कर देखें। जामे तिर्मिजी की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे लोगों, इन्ना अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 2 दिन मुंतखब किए हैं, यौमुल ज़ुहा व यौमुल फ़तर। एक ईद उल फितर का दिन, रमजान की ईद का दिन, दूसरा ईद उल ज़ुहा का दिन, बकरीद का दिन। ये 2 दिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईद के दिन बनाए, इसमें खाओ पियो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी की हदीस ये बयान करती है, जामे तिर्मिजी की सही दर्जे की हदीस, कि हमने साल भर में तुम्हारे लिए 2 ईदें बनाई हैं, 2 ईदें बनाओ, उसी पर इत्तेफा करो। सहाबा ने 2 ईदें मनाई, ताबईन ने 2 ईदें मनाई, तबे ताबईन ने 2 ईदें मनाई, खुलाफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अशरे मुबश्शरा 1,24,000 सहाबाए किराम, उनसे कमोबेश, उनके बाद आने वाले ताबईन, उनके बाद आने वाले तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, अइम्मा किराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों अइम्मा ने, चारों खलीफाओं ने, 10 अशरे मुबश्शरा सहाबा ने, सारे सहाबा, सारे ताबईन ने अपनी जिंदगी में 2 ईदें मनाकर गए। हम क्यों 12 महीने में 12 ईदें मनाते हैं? क्या इसकी दलील है? पब्लिक करे तो क्या करे? एक अवाम है जिनके खानदान से 12 महीने में 12 ईदें चल लेकर आ रही, अब उनके खानदान में आ रही, भाई क्या करेगा बेचारा वो? अरे मौलाना, हमारे बाबा करी सो जी, हमारे दादा कर ले कारी जी,
हमारे नाना पढ़नाना लकड़नाना सकड़नाना सकड़ दादा पकड़ दादा वो पीढ़ी दर पीढ़ी गए तो वहां से चलने का रहा तुम्हें अचानक आको ये सब नको करो बोले कैसा जी सुनती हमें, कैसा जी छोड़ती हमें। इधर ये लोग कहते हमारे खानदान से चलने कर आ रहा है, हमारे बड़ों ने किया है, हम उसी को दीन समझते हैं। 11वीं करना, रजब के कुंडे मनाना, मुहर्रम में झंडे करना, शाबान में बड़ों की ऊदे डालना और ईद मिलाद नबी मनाना और फला फला करना, इसी को हमने इस्लाम समझा है, हम ये करेंगे। इधर अवाम कहती है नहीं, उलमा इकराम ने कुरान हदीस से साबित किया ये तमाम चीजें कुरान में भी नहीं हदीस में भी नहीं करना चाहिए। अब अवाम क्या करेगी, कहां जाएगी अवाम? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसी कंफ्यूज रखने वाली अवाम के लिए मेरा रब का कुरान यह कहता है, अल्लाह यह कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी मसले में कंफ्यूज हो जाओ, अगर किसी मसले में तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो, आओ कुरान की जानिब, आओ हदीस की जानिब, कुरान की जानिब, अल्लाह की जानिब, नबी की जानिब, हदीस की जानिब। यही दो चीजें हैं ना मोमिनों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को बुखारी मुस्नद अहमद की हदीस में यही दो चीजें हिदायत की नजात का जरिया बनाकर बताकर चले गए। तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मेरे उम्मतियों, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक इसे मजबूती से थामोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टस से मस नहीं करेगी। एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है, इसी को मजबूती से थामना, इसी पर अमल करना। अब देखना यह है, बाबा से, दादा से, अम्मा से, नाना से जितने भी ईदान चले कर आ रही, उन ईदों को कुरान के तराजू में रखकर तोला जाए, हदीस के तराजू में रखकर तोला जाए। दूर दूर तक ये ईदान तो क्या, इसके अबवाब भी नजर नहीं आते हमको। इसके अबवाब कहते हैं चैप्टर, नजर नहीं आते। किसी भी हदीस की किताब उठा लो आप, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक अल हाकिम, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा, किसी भी हदीस की किताब उठा लो, रमजान की ईद कैसे करना चाहिए, रमजान में रोजे कैसा रखना चाहिए, ईद के दिन कैसा जाना चाहिए, क्या तकबीरात बुलंद करना चाहिए, वापस आते वक्त कौन से रास्ते से आना चाहिए, ईदगाह में कितनी तकबीरों के साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहिए, उससे पहले ना कोई सुन्नत, उसके बाद ना कोई सुन्नत, वहां ना अज़ा ना इकामत, कैसे ईद की नमाज अदा करेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, पूरा तरीका हर हदीस की किताब में आपको मिलेगा। किसी भी हदीस का चैप्टर उठाइए, बकरीद की ईद, बकरा कैसा लाया जाएगा, ऊंट में कितने हिस्से, गाय में कितने हिस्से, बकरे में क्या ऐब होए तो वो कुर्बानी के लायक नहीं होगा, बकरा किसकी जानिब से कुर्बानी करना चाहिए, कैसा बकरा कुर्बानी के लायक का है, बकरीद ईद कैसे मनाएंगे, वो पूरा चैप्टर आपको हदीस में मिल जाएगा। रमजान का चैप्टर, बकरीद का चैप्टर किसी भी हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा। अब ये छोड़ो, वो चीजें पकड़ो जो बाबा से चलने कर आ रही, अम्मा से चलने कर आ रही, नाना दादा से चलने कर आ रही, अब उठाओ दिखाओ हदीस के अंदर मिलादुन नबी का बाब, रजब के कुंडियां का बाब, मुहर्रम के झंडियां का बाब, शाबान में ऊद मलीदे का बाब, फलां मिलादुन नबी का बाब, फलां 11वीं का बाब, फलां पीराने पीर का बाब, बताओ। नहीं बता सकते, हदीस में है च नहीं, ना इसका बाब मिलेगा, ना अबवाब मिलेगा, ना किताब मिलेगा, ना चैप्टर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि सल्फे सालिहीन के जमाने में ये थे च नहीं, ये उस जमाने में थे च नहीं, तो नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इस्लाम नहीं बना। अल्लाह यही कहता है, अगर मेरे बंदो तुमको किसी मसले में अमल करने में कंफ्यूजन आ जाए, तुम आओ कुरान की जानिब, तुम आओ हदीस की जानिब, परख परख कर उसमें देखो, खोल खोल कर उसमें देखो क्या उसमें है। अगर है तो जरूर अमल करो, नहीं है तो उसे छोड़ दो। चाहे उस अमल को तुम्हारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान वाले क्यों ना करते हो, सारी दुनिया वाले उस पर अमल क्यों ना करते हो, अगर वो बात कुरान हदीस में नहीं है, उस बात को दीवार पर मारो, उसकी कोई वैल्यू इस्लाम के अंदर नहीं है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना, जो कोई भी ऐसा काम, नया काम इस्लाम में करेगा, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, जिसे हमने नहीं किया,
जिसे करने का आर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, उस अमल को अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुंह पर मार कर रद्द कर दिया जाएगा, निकाल कर फेंक दिया जाएगा। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो कोई ऐसा काम करेगा जिस काम के करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, उस अमल को रद्द किया जाएगा, उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। अब लोगों ने बहुत सारे हदीसें घड़ ली, बना ली, शाबान की फजीलत में हदीसें, मुहर्रम के हदीसों फजीलत में हदीसें, रजब के कुंडों के ऊपर हदीसें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठी हदीस को घड़ा, जिसने जानबूझकर अपने बाप दादा के तरीके को सुन्नत बनाकर मुझ पर लाकर थोप दिया, इसे नबी ने हदीस बयान किया, इसे नबी ने अमल किया, ऐसी बात का नबी ने ऑर्डर दिया, जबकि उस बात का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, उस अमल का हमसे कोई लेना देना नहीं, जिसने हमारे ऊपर झूठ बांधा। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, फ़क़द बव्वअ मक़अदहु मिनन नार, उसे चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। जिसने हम पर झूठ गढ़ा और ये कहा, ये अल्लाह ने कहा, ये अल्लाह के रसूल ने कहा, ये हदीस में है, जबकि हदीस में है ही नहीं वो बात, मन घड़त बात, मौजू बात, अपनी जानिब से घड़ा हुआ झूठा वाक़िया। अगर कोई ऐसे वाक़िया को लाकर इस्लाम बनाकर पेश करे, हदीस रसूल का नाम दे दे, मुझ पर झूठ बयान करे, उसे खबरदार, उसका ठिकाना जहन्नम में उसे बना लेना चाहिए। झूठी हदीस घड़ने वालों, झूठा इस्लाम लोगों के सामने पेश करने वालों, क़यामत के दिन दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारा हो जाएगा। याद रखना, अल्लाह ये नहीं कहेगा, ओ अहले हदीसों कहां हो, आ जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए खुली है। अल्लाह नाम लेकर किसी को नहीं पुकारेगा। हनफियों आ जाओ, तबलीगियों आ जाओ, देवबंदियों आ जाओ, बरेलियों आ जाओ, शाफियों आ जाओ, मालिकियों आ जाओ, किसी का नाम ही नहीं लेगा अल्लाह वहां। बस नाम लेगा तो दो चीजों का, कौन है वो लोग जो कुरान पर अमल किए, हदीस पर अमल किए, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चले, मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, वो आए जन्नत में। क्योंकि नबी ने बयान फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, सारे लोग जन्नत में जाएंगे मगर वो नहीं जाएगा जो इनकार किया। वखील, अल्लाह के नबी, पूछा गया, मन अबा या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत किया उसने जन्नत में अपना ठिकाना बनाया, जिसने मेरी नाफरमानी किया उसने मेरा इनकार किया, उसने मेरा इनकार किया। और एक हदीस में अल्लाह के नबी बयान फरमाते, अरे मेरे उम्मतियों ये जान लो, कौम यहूद में 70 पर एक फिरके बने, 70 फिरके जहन्नम में, एक फिरका जन्नत में। कौम नसारा, ईसा के कौम में 70 पर 2 फिरके बने, 70 पर एक जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। मेरी उम्मत में 70 पर 3 बनेंगे, 70 पर 2 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगी जन्नत में। है अल्लाह के नबी, वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? आपने बयान फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम हैं, जिस पर मैं और मेरे सहाबा जिस बुनियाद पर कायम हैं, उसी पर अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे। अब नबी और नबी के सहाबा का अमल हमको देखना है, नबी के सहाबा का अमल देखना है। नबी ने कहा ना, मेरी उम्मत में 70 पर 3 फिरके बनेंगे, 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी। वो कौन सी होगी अल्लाह के नबी? वो जमात कौन सी होगी जो एक जन्नत में जाएगी? नबी ने क्या कहा? जिस पर मैं, मेरे सहाबा आज जिस पर कायम है, वो जाएगी जन्नत में। अब मैं चैलेंज करते हुए आप तमाम जो मेरा बयान अब हाजिर सुनने वाले, बाद में मीडिया के जरिए इंटरनेट पर सुनने वाले तमाम लोगों से मेरा चैलेंज, मदीने के गलियों में, नबी के जमाने में एक दरगाह बता दो जो आज तुम हर गली गली में दरगाह बनाए बैठे हो। नबी के गलियों में, नबी के जमाने में, हर दरख्तों में जितने झंडे,
जितने कुंडे तुमने बना के रखा है, मदीने के गलियों से, नबी के जमाने से एक दरख्त बता दो जिस पर नबी या सहाबा झंडे लगाकर, ऐसे अगरबत्तियां, ऊदबत्तियां, चिराग लगाकर उसे महबूब सुबानी का कट्टा बनाया करते थे। एक दरख्त साबित करके बताओ। तुम नहीं बता सकते, क्योंकि नबी के जमाने में, नबी के दौर में, मदीने के गलियों में न कोई दरगाह था, न कोई झंडा था, न कोई कट्टा था, न कोई उर्स लगता था, न कोई खवाली बस्ती थी, न कोई ढोल ताशा लगता था। अरे थाच नहीं जी, ये नबी के जमाने में थाच नहीं, आज आ गए, माशाल्लाह आज आ गए। गली गली में झंडे, हर क्रास क्रास में कुंडे, जत्ते दरख्ता वत्ते कट्टे बन गए, वत्ते झंडे बन गए, वत्ते महबूब सुबानी के वो बन गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है क्या इस्लाम? ये है क्या इस्लाम? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जान लो, अल्लाह तबारक व तआला कहता है फैसला करो, फैसला। ये आलिम ऐसा कहता है, वो आलिम ऐसा करता है। हम क्या करेंगे भाई? हम पब्लिक क्या करेंगे? अल्लाह कहता है दिल से फैसला करो, इंसाफ से फैसला करो। और तुम्हारे फैसला कैसा होना चाहिए? अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरा मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलुहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। तुम में से कोई मोमिन मर्द हो या औरत, जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दे, अल्लाह का कानून आ जाए, नबी की हदीस आ जाए, अल्लाह ने कह दिया ये इस्लाम में जायज नहीं, नबी ने फरमा दिया जिस चीज को हमने नहीं किया, हमारे सहाबा ने नहीं किया, वो इस्लाम नहीं हो सकता, वो इस्लाम का कोई अमल नहीं हो सकता। जब नबी का फैसला आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया, अल्लाह ताला कहता है अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, अगर तुम अपने मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को तस्लीम नहीं करोगे, इनकार करोगे, वो मन यअसिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, वो बड़ी दूर की गुमराही में जाकर गिर गया, बहुत दूर की गुमराही में जाकर गिर गया। मतलब दुनिया में गुमराह, आखिरत में जहन्नम, बहुत दूर की गुमराही में चला गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की 65 नंबर आयत में बयान करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे रब की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहां तक के अपने मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के बातों को फैसला कुन बात ना मानो। तुम में से कोई अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून, मेरे रब की कसम तुम मोमिन नहीं हो सकते जब अपने बिगड़े हुए मामलात में अल्लाह की किताब को, हदीस की बात को फैसला ना बनाओ। मोमिन नहीं हो सकते। ये कौन कह रहा है? हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा परवरदिगार कह रहा है, हमारा अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम कह रहा है। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा ला यजिदूना फी अनफुसिहिम हरजा, अगर वो अपने दिल में कजरवी या तकलीफ महसूस करेगा, या उस फैसले को बोझ तस्लीम करेगा, या उसे अपने दिल से नहीं मानेगा, हरजम मिम्मा खज़ैत व युसल्लिमु तस्लीमा, अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके किसी अमल को कबूल नहीं करेगा। वो खुली हुई गुमराही में है, वो एक नंबर का काफिर है। मेरे अल्लाह की कसम तू मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बिगड़े हुए मामलात में अल्लाह की बात को तो हकम ना बना ले, फैसला कुन ना बना ले। अल हक मुर, हक हमेशा कड़वा रहता, हक हमेशा कड़वा रहता, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। जो अच्छे अच्छे बातें रहती वो ले लेती, जो कड़वे कड़वे बातें रहती वो छोड़ रही थी। अरे अल्लाह के बंदे, कुरान में है कि नहीं? देख भाई, नहीं मौलाना तुम्हें क्या भी बोलो, हमें वो नहीं छोड़ते,
हमें वो नहीं छोड़ते। हम ना ढोल होनच, हम ना अलीदा मलीदा पूरिया होनच, हम ना वो सब हुए तो हम ना भाई वो होना रहे तो जाओ। इस्लाम में नहीं है वो चीजें, ना मेरे नबी ने किया, ना हमारे सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया, ना तबे ताबईन ने किया। अरे इमामों ने नहीं किया जी। इमाम अबू हनीफा जुलूस निकाले क्या? मक्के का मदीने का कार्टून बना के रोड़ा ब्लॉकेज करके डीजे बाजे लगा के इमाम अबू हनीफा जुलूस निकाले क्या मिलादुन नबी का? इमाम शाफी निकाले क्या? इमाम अहमद इब्न हंबल निकाले क्या? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह निकाले? अरे नहीं निकाले भाई। फिर तुम्हें कई चीज निकालती? अरे तुम्हें कई निकालती भाई? अरे वो ना इमाम के मानने वाले नहीं मौलवी साहब क्या भी बोलो, हम ना इस्लाम इमाम के जरिए मिला, इमामों के जरिए हमें बात मानना। डायरेक्ट नबी की इत्तिबा नहीं कर सकते, हमें इमाम की इत्तिबा कर को नबी की इत्तिबा करना। हमें पहले इमाम को पकड़ को बाद में ऊपर चढ़ना हमें। अरे कैसा आता भाई, ऐसा कैसा होगा मेरे भाई? इमाम के जरिए नबी की इत्तिबा, कौन बोले ये बात आपको? अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी बोलते क्या? क़यामत की सुबह तक क्या क्या होने वाला नबी पूरी पेशन गोइयां बता दी है। क़यामत से पहले ऐसा ऐसा होगा, क़यामत से पहले दज्जाल आएगा, अरब से सोने का पहाड़ निकलेगा, याजूज माजूज आएगा, जमीन से जानवर निकलेगा, जमीन 3 जगह से धसा दी जाएगी, आसमान से धुआं निकलेगा, कानत दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, सूरज मगरिब से निकलेगा, यमन से आग निकलेगी। अरे हर बात नबी खोल खोल कर बता दिए। क़यामत से तक मेरी उम्मत में मेरे मरने के बाद से क़यामत तक क्या क्या होने वाला सब बता दिए अल्लाह के नबी। ये कहीं को नहीं बताए। मेरी उम्मत में 4 इमामा पैदा होंगे, वो इमामों की बात मान कर हमारी बात मानना, ऐसा कहीं नहीं बोले अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिस पर मैं मेरे सहाबा आज कायम हैं, वैसा अमल करने वाला जन्नत में जाएगा। अब नबी के सहाबा क्या इमामा की बात ले को नबी की बात माने या डायरेक्ट कुरान और हदीस पर अमल करे? सहाबा डायरेक्ट कुरान और हदीस पर अमल करे। हम लोग सहाबा के जैसा डायरेक्ट कुरान हदीस पर अमल करे तो कहीं कुछ जन्नत में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जब सहाबा जा सकती, हम क्यों जी नहीं जा सकते? नहीं मौलवी साहब, वो 4 इमामा में से किसी इमाम को घट पकड़े तो जन्नत में जाने का। अच्छा, आप लोग चुप बैठे बैठे, आप लोग चारों इमामों को पकड़ लेती क्या? किसी एक को ना मानती, 4 इमामों को भी नहीं मानते। कोई भी हनफी हो, शाफी हो, मालिक हो, हम्बली, कोई भी हो, चारों इमाम में से किसी एक इमाम को मानता, 3 इमामों को इनकार करता, एक इमाम की तकलीद करता, 3 इमामों का इनकार करता। उन्होंने बोलता कि हम इस इमाम के मानने वाले, हम इस इमाम की तकलीद करेंगे, हम इस इमाम की बात मानेंगे, बाकी की 3 इमामों की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, आप लोग 3 इमामों का इनकार करके एक इमाम की बात मान के अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कह सकते हैं, तो हम लोग 4 इमामों का इनकार करके इमामों के इमाम नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करके उनकी इताअत और इत्तिबा करके हम क्यों जी जन्नत में नहीं जा सकते? आप लोग 4 को भी मानती क्या? नहीं ना, एक को ना मानती, 3 का इनकार करती। 3 को इनकार करके किसी एक को मान के आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बोल रही। हम लोग 4 इमाम की सिर्फ वो बातें इनकार करते हैं जो कुरान और हदीस से टकराती है। वो बातें हम इनकार नहीं करते जो कुरान हदीस के मुताबिक है, सिर्फ वो बातें उनके कहने के मुताबिक। इमामों ने कहा मनसा इज़ा सह हदीस वहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है। जब मेरी बात नबी की बात में टकराव पैदा हो जाए, मेरी बात छोड़ना, नबी की बात लेना, ये इमामों ने हमको बताया। हम इमामों के बताने के मुताबिक अल्लाह के नबी की वो बात लेते हैं जो इमाम से टकरा रही है, इमाम की छोड़ते नबी की लेते, लेकिन नबी की छोड़कर इमाम की नहीं लेते। टक्कर दोनों में आ गई, नबी की छोड़कर इमाम की नहीं लेते, इमाम की छोड़कर नबी की लेते। आप लोग 3 इमामों का इनकार करके एक इमाम की तकलीद करके जन्नत में जाने का दावा कर सकते हैं। हम 4 इमाम की वो बातें जो कुरान हदीस से टक्कर खाती है छोड़कर कुरान हदीस पर अमल करके जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? एक मिसाल बताता हूं मैं। नमाज में सिर का मसा, अगर 4 इमामों के मजहब को तोला जाए, देखा जाए तो शाफी मजहब में
सर जर्रे ऐसा यूं कच्चे बाल को सर सामने ऐसा छीन लिया तो सिर का मसा हो गया। मालिकी मजहब में दूसरा हिस्सा तक यहां तक जाना या तक भिगा लेना हो, यहां तक सिर चढ़ा लिए मसा हो गया। हम्बली मजहब में सुलुसर यहां से लेकर यहां तक जाना, यहां से यहां तक गए तो मसा, अच्छी बात। हनफी मजहब में रुबोसर चौथा हिस्सा आगे से लेकर फिच्चा तक जाना, यहां लीड़े को उतर जाना गर्दन में से, वापस नहीं आना। हमारे नबी की सुन्नत क्या कहती वो देखो, हमारे नबी की हदीस क्या कहती। इमाम शाफई यहां आग बढ़ गए, इमाम मालिक यहां आग बढ़ गए, इमाम अहमद इब्न हंबल यहां ले लिए, इमाम अबू हनीफा यहां तक गए, लीड़े को उतर गए। अब अल्लाह के नबी की क्या सुन्नत कहती है, नबी की हदीस क्या कहती है। नबी की हदीस कहती है जहां से तुमने हाथ शुरू करके गर्दन तक ले गए थे वापस वैसा सर पेशानी तक लाओ, इसे कहते सिर का मसा। ये सुन्नत का सही तरीका सिर का मसा वाला ना इमाम शाफई के पास है, ना हम्बली के पास है, ना मालिकी के पास है, ना अबू हनीफा का पास। हम क्या करेंगे भाई, चारों इमामों की बात सिर के मसे में टक्कर खा रही। एक सिर के मसे में शाफई जो है वो यहीं तक करते, मालिकी जो है वो यहीं तक आते, हम्बली जो है वो यहीं तक जाते, हनफी जो है वो पूरा यहां जाकर उतर लेते। सुन्नत के मुताबिक कौन भी आए चने ना जी, कौन भी नबी की सुन्नत के फॉलो करे चने ना। अरे हम करते, हम लोग नबी की हदीस को लेते, जैसा नबी ने क्या वैसा करते। हम क्यों जी जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, शायद मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी उन लोगों को जो तकलीद के शिकंजे में फंसे, जो इत्तिबा रसूल से जरा पीछे हैं। सुनो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी मिसाल अल्लाह बयान करता है, मेरी मिसाल बयान करता है मेरा परवरदिगार, मेरा मालिकुल मुल्क मेरी मिसाल बयान करता है। एक बनाने वाले ने नया मकान बनाया, उस मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया, उसमें अच्छी अच्छी नेमतों के अंबार सजा दिए, दावत देने के लिए बुलाने के लिए एक बुलाने वाले को भेजा। वो बुलाने वाला कौम को आकर दावत दिया, ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरे कबीले के लोगों, वहां एक बिल्डिंग बनी है, वहां एक बड़ा महल बना है, उसमें अच्छे अच्छे दस्तरखान के नेमतें सजे हैं। वो महल बनाने वाला तुम सबको दावत दिया है, चलो चलो मेरी दावत पर लब्बैक कहते हुए महल में दाखिल होकर दस्तरखान से नेमतें खाओ। बाज लोग उस पर यकीन किए, दावत पर लब्बैक कहे, सीधे बुलाने वाले की बात को माने, उस घर में दाखिल हुए, नेमतें चख लिए। बाज लोगों ने डाउट किया, बाज लोगों ने उसकी दावत को इनकार किया। वो लोग ना महल में दाखिल हुए, ना दस्तरखान की नेमतों से फायदा उठाए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिसाल को जरा वजाहत के साथ बयान करके कहते हैं, सुनो मेरे उम्मतियों सुनो, जो महल बनाने वाला है, जो ऊंचा महल बनाने वाला है वो अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला है। जो महल उसने तैयार किया वो जन्नत है, जन्नत का आला मुकाम है। जो दस्तरखान उसने सजाया वो जन्नत के मेवे हैं, जन्नत के नेमतें हैं। बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा, वो अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल है जो मैं हूं। मुझे बुलाने के लिए भेजा, मैं आकर बुलाया। बास लोगों ने मेरे बुलाने पर यकीन करके मुझ पर लब्बैक कहा, मुझ पर कलमा पढ़ लिया, मुझ पर ईमान लेकर आए, मेरी बातों पर अमल किया। वो लोग मेरे साथ उस महल में दाखिल होकर, जन्नत में दाखिल होकर नेमतों से फायदा उठाए। बास लोगों ने मेरी बात का इनकार किया, बास लोगों ने मेरी बात पर डाउट किया। वो लोग दावत को नहीं माने, वो लोग उस महल में नहीं आए, वो लोग दस्तरखान से फायदा नहीं उठाए। नबी ने कहा, जिन लोगों ने उस बुलाने वाले की दावत को माना वो मेरी सही मानों में इताअत करने वाले मेरे मुत्तबईन, मेरी उम्मती है। और जिन्होंने उस बुलाने वाले की दावत का इनकार किया वो मेरी उम्मत के मुनकिरीन हैं, काफिर हैं। जिन्होंने मेरी नबूवत पर शक किया, मेरी रिसालत का इनकार किया और मेरी इत्तिबा करने के बजाय अपने बाबा दादा बुजुर्गा पीरा वलिया झंडे कुंडे की इत्तिबा कर लिए। साफ सीधी हदीस। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनाम में कहता है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल। ऐ मेरे बंदो सुनो, अल्लाह मिसाल बयान करता है
बेशक ये सीधा रास्ता है, ये कुरान का रास्ता है, ये हदीस का रास्ता है। इस रास्ते की पैरवी करना, इसी रास्ते पर गामजन रहना। वला तत्तबिउस सुबुल, इसके आजू बाजू भी चंद शॉर्टकट रास्ते हैं, शॉर्टकट रास्ते हैं। बस लोग बोलती है इतना लंबा सफर कर को जन्नत में कहीं जाना, यहाँ शॉर्टकट रास्ते उड़ी मार को पीरा को पकड़ लिए, पीरा हम ना लेक जन्नत में जाती। यहाँ बड़े बड़े वलियां बैठी, एक 11वीं कर को महबूब सुबानी खुश कर डाले, उन्होंने हाथ पकड़ ले खींच ले जन्नत में लेके चले आती। शॉर्टकट रास्ते वो तो लंबा, हमें कहीं चीज जाना होता क्या? इस्लाम पर चलने होता क्या? कुरान हदीस को समझने हमारे से होता क्या? नहीं, शॉर्टकट रास्ते। अल्लाह कहता है वला तत्तबिउस सुबुल, ऐ मेरे बंदो शॉर्टकट रास्तों की पैरवी ना करना। अल्लाह के नबी ये आयत समझाते हुए जमीन पर एक लकीर खींचते, दाएं बाएं चंद लकीरें खींचते, बयान करते हैं, सुनो मेरे सहाबा, ये जो सीधा रास्ता है ये कुरान का रास्ता है, ये हदीस का रास्ता है, ये सीधे जन्नत में जाता है, ये मेरा रास्ता है, मेरे सहाबा का रास्ता है। और ये जो शॉर्टकट रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान बैठे तुम्हें बुला रहा है, इधर आ जा बेटे, इधर ढोल बाजा है, इधर आ जा बेटे, हलवे पूरियां हैं, इधर आ जा बेटे, ढांस बाजा है। शैतान बैठकर उन रास्तों पे तुम्हें दावत देता है, बुलाता है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों की पैरवी ना करना, दूसरे शॉर्टकट रास्तों को इख्तियार ना करना। अगर तुमने इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह कहता है कि सीधे रास्ते से तुम गुमराह हो जाओगे, सीधे रास्ते से तुम गुमराह हो जाओगे। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने के लिए, उनकी पैरवी पर चलने के लिए दूसरे किसी की पैरवी ना करना। अब कैसा पता चले ये बात पर अमल करना चाहिए, ये बात पर अमल नहीं करना चाहिए? सूरह आराफ आयत नंबर 3 अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। ऐ मेरे बंदो उस चीज की पैरवी करना जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाजिल किया, उस चीज की पैरवी न करना जो अल्लाह ने आसमान से नहीं नाजिल किया। अब आसमान से क्या उतरा? कुरान उतरा है, हदीस उतरी है। अल्लाह ताला जिब्राइल के जरिए कुरान को नाजिल किया जिसे वहीय मतलू हम कहते हैं, हदीस को नाजिल किया जिसे वहीय गैर मतलू कहते हैं, जिसकी तिलावत नहीं की जाती। कुरान उतरा, हदीस उतरा, उसको फॉलो करो, उसकी इत्तिबा करो, उसकी पैरवी करो, उसे दिल और जान से मानो, लेकिन उस चीज को मत मानो जो आसमान से नहीं उतरी। इमामों की फिक़्ह आसमान से उतरी है क्या? इमाम अबू हनीफा की फिक़्ह आसमान से उतरी है क्या? रद्दे मुख्तार, दुर्रे मुख्तार, फतावा आलमगीर वगैरह वगैरह और भी जो बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कुरान और हदीस से टक्कर खाने वाली मनगढ़ंत बेहिसाब बातें हैं, क्या आसमान से उतरी हैं क्या? मिन व अन, बगैर सोचे समझे आंख पर पट्टी बांधकर इन बातों को, इन किताबों को एक्सेप्ट किया जाए, क्या आसमान से उतरी है क्या? नहीं, आसमान से दो ही चीजें उतरी हैं। हमारे नबी दो ही चीजें हमको देकर गए। अल्लाह ने दो ही हाथ हमको दिए। अल्लाह ने दो चीजें आसमान से नाजिल किया, कुरान हदीस। अल्लाह के नबी दो चीजें दिए, कुरान हदीस। अल्लाह ने दो हाथ दिए, कुरान हदीस। दो हाथों में दो किताबें काफी है, तीसरा हाथ दिया नहीं, तीसरी किताब की हमने जरूरत नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब आइए, बहुत सारे लोग सुन्नत का इनकार करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को नहीं मानते। वो लोग सुन्नत की मुखालिफत करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा? नबी की बात को नहीं मानते, साफ सीधा कहते हैं अरे वो हदीस होंगी भाई, बुखारी में लिखकर होंगे। हमारे बुजुर्गां बोलें क्या, हमारे पीरान चलीं क्या, हमारे मुर्शदा मुफ्तिया वैसा बोलें क्या? नहीं ना, हमें नहीं मानते। बुखारी में लिखकर होंगे, मुस्लिम में लिखकर होंगे, सही हदीसों में होंगे, हमें नहीं मानते का तो नहीं मानते। हमारे इमामा बोले नहीं, हमें नहीं मानते। ऐसे लोग बास लोग हैं, इनका क्या होगा? साफ सीधा हदीस को इनकार करने वाले, नबी की बात को ठुकराने वाले, क्या होगा इनका? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत का मैदान होगा, सारी उम्मत परेशान हाल होगी, जाएंगे दर दर भटकेंगे, अंबिया के पास जाएंगे सिफारिश करवाने के लिए, कोई
अंबिया कोई नबी कोई रसूल अपनी जबान खोलने की भी मजाल नहीं रखेगा। हर कोई डरेगा, हर कोई ये कहेगा आज मेरा मालिक इतना गुस्से में है, आज से पहले इतना गुस्से में कभी नहीं था। अल्लाह की खुदरत को देखने के बाद हमारी हालत भी बेहालत हो गई। हम अल्लाह के सामने जबान नहीं खोल सकते, हम कुछ नहीं बयान कर सकते। बाज अंबिया अपने खामियों को गिनाएंगे, हमसे ये कोताही हुई थी, हमसे ये गलती सरजद हुई थी, कहीं अल्लाह हमको पकड़ कर पूछ ले तो हम क्या जवाब दें। हम अल्लाह के सामने कुछ नहीं बयान कर सकते। तुम फलां के पास जाओ, तुम फलां नबी के पास जाओ, धक्के खाते खाते आखिरकार हमारे नबी के पास आएंगे। लंबी हदीस नबी की शिफाअत के बारे में, नबी के पास आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगे, अल्लाह के नबी आप बयान कीजिए, आप अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह के हुक्म से अपनी जबान खोलेंगे। कुरान सूरह नबा आयत नंबर 18 अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। उस दिन अल्लाह के फरिश्ते और अंबिया और सारे इंसान सफे दर सफे बनाए खड़े रहेंगे। किसी माई के लाल को बात करने की भी मजाल नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा, लेकिन रहमान जिसे इजाजत दे वही बात करेगा। अल्लाह की इजाजत से बात करेंगे। और सबसे पहले बात हमारे नबी करेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह खोलेंगे, अल्लाह के हुक्म से इजाजत से मुंह खोलेंगे। हमारे नबी अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब मुकाम महमूद पर शिफाअत का झंडा लिए अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब होंगे। नबी के पीछे नबी की उम्मत रहेगी, सारी उम्मत प्यासी रहेगी, परेशान हाल रहेगी। अल्लाह के नबी अल्लाह से इजाजत मांगेंगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, ये परेशान हाल है, अल्लाह ये मेरी उम्मत प्यासी है, अल्लाह तू इजाजत दे मैं इनके हक में कुछ बोल सकूं, अल्लाह तू इजाजत दे मैं इनकी प्यास मिटा सकूं। मेरा परवरदिगार इजाजत देगा, मेरे नबी जाओ अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पर ले जाओ, ले जाकर हौज़े कौसर की प्यास से इनके हलकों को तर करके लाओ। उसके बाद अल्लाह इजाजत देगा, मेरे नबी आप अपनी उम्मत के फला लोगों के हक में सिफारिश कीजिए, हम कबूल करेंगे, फला लोगों के हक में सिफारिश कीजिए, हम कबूल करेंगे, फला के हक में सिफारिश कीजिए, हम कबूल करेंगे। अल्लाह इजाजत देगा, अल्लाह इजाजत देगा। हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह इजाजत देगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है अल्लाह के नजदीक अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना मुंह खोल सके, अल्लाह की इजाजत होगी। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, मेरे नबी कह दो तमाम सिफारिशों का, तमाम शिफाअतों का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे इख्तियार देगा, अल्लाह जितना बोलने की इजाजत देगा, जिसके हक में सिफारिश की इजाजत देगा, वही सिफारिश करेगा, उतनी ही सिफारिश करेगा। अगर हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश करने का इख्तियार अगर रखते तो अपनी जिंदगी में अपनी प्यारी बेटी फातिमा को ये नहीं बोलते, अपनी फूफी सफिया से ये नहीं कहते, अपने खानदान और कबीले के लोगों से ये ना कहते मेरे खानदान और कबीले वालों तुम्हें फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जन्नत में बुला ले जाता हूँ। मेरी फूफी सफिया तो क्या भी टेंशन मत ले, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। ऐ मेरी प्यारी बेटी तो क्या भी टेंशन मत ले, मैं तुझे जन्नत दिलाऊंगा, ऐसा कहते थे। लेकिन नबी ने वैसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे ख़ैश कबीले के लोगों, ये बात जान लो, अपनी जान को जहन्नम से खरीदने का सौदा दुनिया में तैयार कर लो, इसलिए कि ये तुम्हारे खानदान का शख्स, ये नबी अल्लाह की जहन्नम से तुम्हें नहीं बचा सकेगा। ऐ मेरी फूफी सफिया, मैं भले ही दुनिया में तेरा बेटा लगता हूँ, तू दुनिया में अल्लाह की जहन्नम से बचने का सौदा तैयार कर ले, मैं तुझे भी जहन्नम से अल्लाह की नहीं बचा सकता। ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, दुनिया में मेरे माल में क्या मांगती मांग ले, मैं आखिरत में मेरी बेटी को भी जहन्नम से नहीं छुड़ा सकता। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। सूरह बकरा, सूरह शोरा, किताब तफसीर, सही बुखारी, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन के तफसीर में उठाकर हदीस देख लो। अल्लाह के नबी ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया,
मैं अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं कर सकता। जब अल्लाह इजाजत देगा, जिसके हक में इजाजत देगा, उसी के हक में सिफारिश करूंगा। मेरे भाइयों, एक बात हो गई, हमारे नबी अपनी मर्जी से सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह इजाजत देगा। दूसरी बात, हौज़े कौसर का पानी पिलाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्मत को ले जाते रहेंगे, सबसे पहले उस उम्मत में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाज उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर निकाल कर फेंकेंगे, छांटेंगे। जैसे हम चावल चुनते वक्त कंकरे को निकाल कर सड़ते हैं, अनाज से आटे के ये मिट्टी के ढेलों को जैसे निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उम्मते मोहम्मदिया से बाज ऐसे लोगों को पकड़कर बाहर किया जाता रहेगा। जब अल्लाह के नबी देखेंगे मेरी उम्मत से पकड़ पकड़ कर लोगों को हटाया जा रहा है, नबी पूछेंगे, ऐ जिब्राइल, इनको छोड़ दो, ये मेरी उम्मत है, ये प्यासी है, मैं इनको पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ नबी, ये आपकी उम्मत जरूर है, जब तक आप जिंदा थे आपकी शरीयत को बराबर फॉलो करते थे, जब आप दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह के नबी, आपके बताए हुए तरीकों को छोड़कर इन्होंने बाप दादा के तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया। इस्लाम के असली घी में बाबा दादा के पीर मुर्शदों के नकली डालडे को मिक्स करना इन्होंने शुरू कर दिया। इस्लाम के सही तरीकों में नकली तरीके इन्होंने राइज कर दिए। इस्लाम के सही मनहज को रस्मों रिवाजों से, सुन्नत को बिदात से, तौहीद को शिरक से, दीन को इन्होंने पलट के रख दिया। तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अच्छा, मेरी सुन्नत से इन्हिराफ करने वाले, मेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ने वाले, मेरे तरीके को छोड़ने वाले, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, उनको दूर कर दो मेरी नजरों से, जिन्होंने मेरे मरने के बाद मेरे दीन को बदल के रख दिया। निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा सुन्नत से इन्हिराफ करने वालों को। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब सुन्नत किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सुन्नत किसे कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के तरीका किसे कहते हैं। जैसा नबी ने किया वैसा ही करना चाहिए, उसमें जर्रा बराबर असली घी में डालडा मिक्स नहीं करना चाहिए। असली इस्लाम के अंदर रत्ती बराबर भी कमी पेशी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हूबहू जैसे नबी ने किया वैसे अमल करना, उसे कहते हैं सुन्नत। जैसे चंद मैं मिसालें बयान करता हूं आपके सामने। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अम्मारा बिन रुआइबा, अम्मारा बिन रूबिया वो बयान करते हैं कि जब उन्होंने देखा मरवान का बेटा बशीर मेंबरे रसूल पर खड़े होकर जुमा का खुतबा दे रहा है, दाएं हाथ से भी इशारा कर रहा है, बाएं हाथ से भी इशारा कर रहा है। उन्होंने देखकर कहा, अल्लाह ताला तेरे हाथ को बर्बाद करे। नबी अपनी पूरी जिंदगी में एक हाथ से, दाएं हाथ से शहादत की उंगली से इशारा करते थे, और तू नबी की सुन्नत से हटकर दो दो हाथों से इशारा करता है। यह सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। मेरे नबी ने एक हाथ से इशारा किया और तू दो हाथों से इशारा करता है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम में इतना भी गवारा नहीं सहाबा को कि कोई सुन्नत से हटकर अपनी जानिब से इजाफा करे, इतना भी गवारा नहीं। दूसरी हदीस ये मुस्लिम शरीफ की है। काब बिन उजरा मस्जिद में आए, उन्होंने देखा उम्मे हकम का बेटा अब्दुर्रहमान जुमा का खुतबा बैठकर दे रहा है। जब उन्होंने देखा तो कहा, इस खबीस को देखो, इस नालायक को देखो, अल्लाह के नबी अपनी पूरी जिंदगी में खुतबा खड़े होकर आपने दिया और ये खबीस जुमा का खुतबा बैठकर दे रहा है। नबी की सुन्नत को इसने बदल दिया। जब लोगों ने देखा तिजारत की जानिब भाग गए, छोड़कर नबी को चले गए। तरकू खाइमा, नबी खड़े हुए थे मेंबर पर, नबी को खड़ा छोड़कर लोग भाग गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी अपनी जिंदगी में खड़े होकर हमेशा खुतबा दिए और ये खबीस नबी की सुन्नत से हटकर बैठकर खुतबा दे रहा है। सहाबा किराम ने टोका, सहाबा किराम ने रोका। सहाबा किस कदर सुन्नत की पैरवी करते थे, किस कदर नबी की सीरत को अपना लाहे अमल बनाते थे। अल्लाह के नबी मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं, आपने नमाज शुरू किया, जूतों में आपने नमाज पढ़ा, सहाबा भी जूतों में नमाज पढ़ा। 2 रकात नमाज हो गई,
नबी अलैहिस्सलाम अपने जूते निकाल कर फेंक दिए, सहाबा भी अपने जूते निकाल कर फेंक दिए। नमाज खत्म हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा तुमने जूते क्यों उतार दिए? सहाबा का जवाब सुनिए। सहाबा ने कहा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के नबी, आप जूतों में नमाज पढ़े, हम भी जूतों में नमाज पढ़े। जब आप निकाल दिए तो हमारी क्या मजाल कि हम जूतों के साथ नमाज पढ़े? आप निकाल दिए सो हम निकाल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुमको मालूम है मैं जूते क्यों निकाला? नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। मेरे जूते के एड़ी में जरी गंदगी लगी थी जिसकी इत्तला अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए दिया, सो मैंने निकाल दिया। अल्लाह के नबी वो हमको नहीं मालूम, आप किए सो हम किए, आप निकाले सो हम निकाले। वो क्या, कई को, क्यों, किधर, ये खिकरना हमारा मसला नहीं, हम ऐसा पूछते भी नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे, बस इसे कहते हैं इत्तिबा, इसे कहते हैं इताअत। क्या, क्यों, किधर, कई को, ये सवाल आज नहीं उठना। नबी ने कह दिया सो आमन्ना सद्दकना, हदीस रसूल आ गई, आमन्ना सद्दकना। सही हदीस, सही हदीस नहीं, सही हदीस। अब्दुल्ला इब्ने मुखफ्फल का भतीजा इब्ने माजा की हदीस है, कंकरियां फेंक रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मुखफ्फल ने कहा, मेरे भतीजे कंकरियां मत फेंक, इसलिए कि नबी ने फरमाया, इसलिए कि नबी ने फरमाया ये कंकरियां किसी की आंख को लगेगी तो आंख फूट जाएगी। मेरे नबी की हदीस है, सुन्नत है, कंकरियां मत फेंका करो। भतीजा नहीं माना, फेंकता रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुगफ्फल कहते हैं, अगर तू नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करेगा मैं हरगिज तुझसे बात नहीं करूंगा। नाराज होकर भगा दिए भतीजे को। हजरत उमर बिन खत्ताब अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं, क्या है मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सामने आई, बात सामने आई कि अल्लाह के नबी ने किसी औरत को मस्जिद आने से मना नहीं किया अगर वो औरत बापर्दा है, अगर वो औरत अपने शौहर की इजाजत से मस्जिद आना चाहती है, बगैर खुशबू लगाए, बगैर खनकने वाले जेवर पहने, उस मस्जिद में जिस मस्जिद में उनके आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग, बापर्दा मस्जिद औरत आना चाहे उसे नहीं रोकना चाहिए। नहीं अब्बा तुम्हें क्या भी बोलो, मैं रोक दो। मेरे बेटे मैं कह रहा हूं अल्लाह के नबी ने कहा, और तू कह रहा है मैं नहीं इजाजत दूंगा मेरी बीवी को। यूशिक अन तुनज़्ज़िल अलैकुम हिजारतम मिनस समा, मेरे बेटे डर इस बात से कि आसमान से पत्थरों की बारिश तेरे ऊपर ना उतर जाए। मैं अल्लाह के नबी की बात पेश कर रहा हूं और तू अल्लाह के रसूल के ऊपर अपनी बात पेश कर रहा है। डर गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, डर गए। मेरे दीन और इस्लामी भाई, नबी की बात में जर्रा बराबर फर्क सहाबा बर्दाश्त नहीं करते। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में है, कूफा में। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास अबू मूसा अशरी आए, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद नबी की हदीस है, जो आदमी 30 पर 3 मरतबा, 33 मरतबा, 33 मरतबा, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ेगा और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर की तस्बीह पढ़कर 100 कंप्लीट करेगा, अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ करेगा, चाहे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। खैर, वो 100 मरतबा तस्बीह पढ़ने की सुन्नत नबी ने बताई है सही हदीस के अंदर, और वो पढ़ने का तरीका नबी ने अपनी उंगलियों पर बताया, सहाबा ने अपनी उंगलियों पर बताया। अमल जारी है। अब कूफा की जामे मस्जिद में लोगों ने नया तरीका इजाद कर लिया, 100 कंकरियां ला लिए। अब उन उंगलियों को गिने तो परपाट हो रहा, कंफ्यूज हो रहा, आगे पीछे हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा, या तो ज्यादा गिन रही ना तो कम गिन रही। ये कंफ्यूज नको भाई, 100 कंकरियों के कुप्पे रख लेंगे हमारे सामने और एक कंकर झड़ाएगा इमाम सुभान अल्लाह, सारे मुख्तदी अपने अपने कंकरे नीचे झड़ाएंगे सुभान अल्लाह, इमाम दूसरा कंकरा झड़ाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मुख्तदी झड़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया तरीका उन्होंने इजाद किया इस्लाम के अंदर। अब सारी मस्जिद, कूफा की जामे मस्जिद में ये कंकरियों की आवाज टप्पू 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 टप्पू, क्योंकि एक आदमी झड़ेगा कंकरियों में कंकरी, तो एक आवाज सारे मुख्तदी कंकरियां झड़ा रही,
टप्पू टप्पू टप्पू। ये मस्जिद में क्या तो भी भाई अबू मूसा अशअरी आए, क्या जी क्या कर रही जी तुम्हें? हमें कंकरे तस्बीह गिन रही, वही तस्बीह जो नबी ने सिखाया। अच्छा, नबी कंकरियों पे तो नहीं पड़े, उंगलियों पे पड़े, ये कंकरियां क्यों शुरू की? नहीं जी हमें ऐसा देखो करने का। गए अबू अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बुला लेकर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा ये क्या जी कर रही तुम्हें, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं ये हम तस्बीह गिन रहे हैं, वही तस्बीह ना जो नबी ने सिखाई है, लेकिन तरीका अलग। नबी ने उंगलियों पे पढ़ा, तुम्हें तस्बीह को कई को मन के ढकल रही, मशीना को कई को काउंट कर रही, टक 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 मशीन, तस्बीह मशीन आ गई, वो उंगलियों में डाल लेती रिंग, और यहाँ गड्ढा हथेली में पकड़ ले चलते फिरते। हजरत मुंह पर हमेशा तस्बीह जारी करना। क्या तस्बीह भाई? लंबी मिसवाक, आधी मिसवाक जेब में रहती, 1.5 मिसवाक बाहर में रहती, पूरी दुनिया को दिखाए सरकार। मिसवाक अंदर टंगा ली, हाथों में तस्बीह पकड़ ले, ऐसा उन्हें पढ़ने जाता रहता। वली अल्लाह इसके मुंह से तस्बीह छोड़ क्या भी निकलता नहीं करना, और सौ पढ़ले 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 कहूं को पूरा दिखाते रहा। घर में गया जोर पूछती, कहीं कुछ आटा लाई नहीं, कहीं कुछ शक्कर लाई नहीं, कितने बार जी तुम ना बोलना अंडे लाओगे तो अंडे खाली हुए। अब अत्ता बोलना तस्बीह सड़ता, मुंह से ले गालियां बकना शुरू करता। बाहर रहा तो सूफी, अंदर गया तो पूरा कुल्फी, बाहर रहा तो शेरवानी, अंदर गया तो पूरी परेशानी। अल्लाहु अकबर, ये क्या जी जरूरत, कौन जी बोला ये? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो आदमी है जो अपने घर वाले अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बाहर वालों को दिखाने सुभान अल्लाह, मन के ढकल्ले, ये मन के ढकल्ले का है नहीं जी, ये तुम्हारे मन के खबर में भी नहीं आते, तुम्हारे कफन में जेब नहीं, तुम्हारे तस्बीह के मन के आंखों बैठते नहीं, क़यामत के दिन मन के आते नहीं, उंगलियां आती, उंगलियां आती। अल्लाह बोलता ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबु। अल्लाह ताला बयान करता है, क्या तुमने ये गुमान किया है कि क़यामत नहीं आएगी, हम तुमको दोबारा जिंदा नहीं करेंगे? अयहसबु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या तुमने गुमान किया है तुम्हारे खबर में बोसीदा जिस्म को हम जमा नहीं करेंगे? बला खादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाहु अकबर, बला क्यों नहीं, अला अन नुसव्विय बनाना, हम क़यामत के दिन जब तुमको जगाएंगे, ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, ये तुम्हारी उंगलियों के पोर जैसे दुनिया में है, वैसे ही क़यामत के दिन इन फिंगरप्रिंट्स को बनाकर हम उठाएंगे। बनाना कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को। जब कुरान ने फिंगरप्रिंट्स का जिक्र किया, ये दुनिया के साइंटिस्टों ने फिंगरप्रिंट्स लेकर सर्च करना शुरू किया। अल्लाह फिंगरप्रिंट्स के बारे में क्यों बयान कर रहा, इसमें क्या मौजज़ा है? जब सारे लोगों के फिंगर थंब्स लेकर चेक करे, पता चला दुनिया में एक आदमी का फिंगरप्रिंट्स दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। जिसे सिग्नेचर नहीं आती उन्हें थंब रखना, तब उनको पता चला। और कई लोग इस फिंगरप्रिंट्स के सर्च पर कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए। नबी को कैसे पता चला फिंगरप्रिंट्स के बारे में? यह जरूर अल्लाह का कलाम है, यह नबी का लिखा हुआ कोई भगवत गीता रामायण महाभारत की जैसी किताब नहीं है, यह अल्लाह की मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब। इस्लाम कबूल कर लिए। अरे जब क़यामत के दिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स अल्लाह बराबर कर सकता, तो यही उंगलियां कल क़यामत के दिन गवाही देंगी, या अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। क्यों क्या इंसान इनकार करेगा, या अल्लाह मैं ऐसा नहीं करया, मैं वैसा नहीं करया, मैं वो नहीं करया। अल्लाह कहेगा इसके मुंह पर मोहर लगाओ। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन आयत नंबर 65 60 पर 5। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, जो लोग क़यामत में इनकार करेंगे, हम उनके मुंह पर मोहर लगाएंगे, उनके हाथों को पैरों को बोलने की कुव्वत दे देंगे, इनके हाथ उनकी उंगलियां चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी, हाँ या अल्लाह, ये मुझ पर तस्बीह पढ़ा करता था, ये मुझसे गुनाह किया करता था, ये मुझ पर नेकियां किया करता था। नेकियों की गवाह, गुनाहों की गवाह हमारे हाथ, हमारी उंगलियां देंगे, तुम्हारे तस्बीह के मन के नहीं आएंगे। खैर, कूफा की जामे मस्जिद में कंकरे लेकर गिनने वाले सारे लोगों को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कंकरियों से मारकर उनको मस्जिद से भगा दिया। चलो निकलो यहां से। नबी अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए ज्यादा साल नहीं हुए, नबी के झुब्बे मौजूद हैं उम्महातुल मोमिनीन के घरों में। नबी जिन बर्तनों में खाना खाए वो बर्तन अभी टूटे नहीं हैं,
उतना जल्दी दीन में बिदात तुमने शुरू किया, चलो निकलो यहां से, भगा दिए। आज हमारे पास सुन्नत कहां है? सुन्नत का जनाजा है हमारे पास। कौन सा भी मसला ले लो, हर मसले में सुन्नत है, हर मसले में। दाढ़ी रखने में सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है नबी की। आज देखो कई लोग इससे नफरत करते हैं, दाढ़ी वाले चेहरे से नफरत करते हैं। नहीं, ये अंबिया की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। कपड़ा पहनने में नबी की इत्तबा नहीं करते। नबी ने क्या कहा? मर्दों का कपड़ा टखने से ऊपर, औरतों का कपड़ा टखने से नीचे हमेशा होना चाहिए। अगर मर्द कपड़ा टखने से नीचे लटका लिया, औरत अपना कपड़ा टखने से ऊपर पहन ली, अल्लाह की लानत उतरेगी उस पर, अल्लाह की गज़ो गज़ब उतरेगी उस पर, अल्लाह की निगाह करम नहीं पड़ेगी उस पर। अल्लाहु अकबर। नबी का ऐलान है, नबी का फरमान है, हर चीज में सुन्नत है, हर चीज में नबी की इत्तिबा है। निकाह करने से लेकर, अकीका करने से लेकर, कुर्बानी करने से लेकर हर मसले में सुन्नत। निकाह करो सादगी के साथ, बैंड बाजा, बड़े बड़े शादी हाल, हजारों का खर्चा, हजारों लाखों रुपए का फजूल खर्चे, ये नहीं है। सादगी के साथ निकाह करो। निकाह आज करो, वलीमा दूसरे दिन करो, या जिस दिन निकाह करते हो उसी दिन वलीमा करो, जैसे जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी ने किया। जोहर से पहले निकाह, जोहर के बाद वलीमा। खैर, सुन्नत के ऊपर फॉलो करना इस्लाम का असल शेवा है। और मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने थे। नबी अलैहि सलाम ने पूछा, ये क्या है? सोने की अंगूठी। नबी ने कहा, क्या तू ये पसंद करेगा अल्लाह तुझे आग की अंगूठी पहनाए? वो आग की अंगूठी बोलते ही निकाल दिए। नबी ने कहा, निकाल कर फेंक दिए। जब आगे नबी अलैहि सलाम गए, बाद में आने वाले दोस्तों ने बताया, उठा लो जी, तुम्हारी बीवी बच्चों को दिए तो काम आती, उठा लो उठा लो। वो साहबी बोले, जिस नबी को मेरे नबी ने लानत बरसा कर फेंक दी, उसे उठाना तो दूर की बात, मैं पलट कर देखना भी उसे गवारा नहीं करता। सोने की अंगूठी, इत्तिबा इसे कहते हैं। और नबी की सुन्नत में बहाने करना, नहीं वो साहब हम ना अमल करने होता नहीं, वो हदीसों पर चलने होता नहीं। सुन्नत पर अमल करने में बहाने, हीले, इन्हिराफ, सुन्नत से रूगर्दानी, अल्लाह की लानत उतरेगी। याद रखना, अल्लाह की लानत उतरेगी। एक शख्स था नबी के जमाने में, नबी के सामने लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा था, बाएं हाथ से खाना खा रहा था। नबी अलैहि सलाम ने उसे मना किया। नबी ने उसे तरगीब दिया, ऐ मेरे भाई, सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाना मोमिन की अलामत है, बाएं हाथ से शैतान खाता है, बाएं हाथ से मत खाया करो। उन्होंने क्या बोले, नहीं अल्लाह के नबी, मेरा सीधा हाथ काम नहीं कर रहा, मैं सीधे हाथ से खा सकता नहीं, बाएं हाथ से मैं खाने का क्या। तब अल्लाह के नबी बोले, अगर तू सच कहता है अल्लाह तुझे वैसा करे। बोले अल्लाह के नबी, हकीकत में उसका सीधा हाथ अच्छा था, बहाने करे सुन्नत को अमल करने, बहाने किया। अल्लाह क्या किया, उसके बहाने को सच कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए उसका सीधा हाथ लकवा मार दिया। जिंदगी में उसका सीधा हाथ कभी ऊपर उठाया नहीं। सुन्नत पर अमल करने में बहाने नहीं करना। दाढ़ी रखो जी, नहीं मौलवी साहब शादी से पहले रखने होता नहीं, कहीं रखने होता नहीं मौलवी साहब कौन भी देखेंगे बुढ़ा है, इसे कैसा पसंद करना कहती, इसीलिए शादी के बाद रख दो। अरे तुम्हारी बीवी से तो रुकावट आ रही, शादी में रुकावट आ रही, दाढ़ी तुम्हारी। अल्लाह ताला मर्दों को शेर बनाया, शेर, और शेर बबर की अलामत है यह दाढ़ी। शेर की शेविंग कर दो, शेर में शेरनी में फर्क नहीं रहता। शेर का रुबाब चेहरा है ये, नबी का चेहरा है ये, सहाबा का चेहरा है ये। अरे तुम्हारी बीवी इनकार कर रही है, रिश्ता नहीं लगता। याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुकद्दर में कौन सी लड़की तुम्हारी बीवी बनती, ये तुम्हारे पैदा करने से अल्लाह तबारक व तआला कई साल पहले कलम को पैदा करके बना दिया। दुनिया को पैदा करने से कई साल पहले तकदीर बना दिया। तुम्हें दाढ़ी रखे तो भी तुम ना वो लड़की मिलती, तुम्हें दाढ़ी मुंडाए तो भी वो लड़की मिलती। तुम्हारी मुकद्दर से हटकर कोई हूर परी नहीं मिलती। जो दुनिया में तुम्हारी बीवी बनना नसीब में अल्लाह ने लिख दिया वही मिलती। अब दाढ़ी को कहीं वो शादी के बहाने में ला खड़ा कर रही। हीले बहाने नहीं करना, सुन्नत पर अमल करने में हीले बहाने नहीं करना। और हमारा माहौल बन गया आजकल, नहीं है दाढ़ी रखने वाले को नहीं देना, दाढ़ी मुंडाइस वाले को देना, ये जहेज लेने वाले को नहीं देना, जहेज नहीं मांगने वाले को देना। अक्सर ऐसे चक्कर में हमारी अहले हदीस लड़कियों को, बरेली घरियों को शादी कर कर दे देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। बरेली घर में
खबर परस्ती के घर में, शिरक करने वालों के घर में। अल्लाहु अकबर, तुम क्या कर रहे हो मालूम? तुम्हारी बेटी को जहन्नम के गड्ढे में लग जाकर ढकल रहे हो अपने हाथों से। गोया तुम कह रहे हो मेरी तौहीद परस्त मेरी बेटी, अब तू जा 11वीं कर, उर्स मना, खबरों पे जियारत कर, खबरों के सजदे कर, जैसा तेरी सास बोलती वैसा कर, जैसा तेरा मर्द बोलता वैसा कर। शिरक करने के दलदल में ढकल रही आप, शिरक करने के दलदल में ढकल रही। अरे तौहीद परस्त लड़की को तौहीद परस्त घराने में दो। रिश्ता नहीं आ रहा, तहज्जुद में उठ के दुआ करो, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, गैर से जरूर रिश्ते पे भेजेगा, लेकिन किसी गैर मुशरिकों को अपनी तौहीद परस्त घराने की लड़कियों को हरगिज़ बिया करके मत दो। और जो लड़कियां तलाक हो चुकी हैं उनसे शादी करने में ऐब समझती, तलाकशुदा, बेवा, मुताल्लका, मर्द छोड़ेस वाला, मर्द मरेस वाला, ऐसी औरतों को शादी करने में ऐब समझती। हमारे नबी की सीरत देखो, हमारे नबी की जिंदगी देखो, बाकिरा सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, बाकी के सारे बेवा या मुताल्लका थी नबी की बीवियां। नबी ने 11 शादियां की, एक बाकिरा थी, एक कुंवारी थी, बाकी सब सहीबा थी। आप किसी तलाकशुदा को, बेवा को शादी करने में क्यों जी कतराते हो? अल्लाह के नबी की किसी भी सुन्नत पर अमल करने में कतराहियत नहीं होना चाहिए आपको। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, खुरैम अल-असदी एक सहाबी रसूल थे। जब नबी ने उनको देखा, उनके बाल इतने लंबे लंबे, उनके बाल लंबे लंबे, उनके पैंट, उनका कपड़ा, उनका इज़ार टखने के नीचे। अल्लाह के नबी ने देखा, आपने फरमाया खुरैम अल-असदी क्या ही बेहतरीन आदमी है, खुरैम अल-असदी क्या बेहतरीन शख्स है, काश इनके अंदर 2 चीजों की कमी है, अगर ये 2 चीजों को पूरा कर ले बड़ा बेहतरीन आदमी है खुरैम अल-असदी। वो 2 चीजें क्या? इनके बाल जो इतने लंबे लंबे गिरदा कटिंग है, उसे ये कट कर कर अपने बालों को जरा छोटे कर ले, और अपना कपड़ा जो टखने से नीचे लटक रहा है, अगर ये कपड़ा टखने से ऊपर उठा ले, माशाअल्लाह कितने अच्छे खुरैम अल-असदी। ये बात नबी की, ये बात खुरैम अल-असदी तक पहुंच गई। उन्होंने हमेशा हमेशा अपने बाल गिरदा कटिंग करके कान के आधे कान के बराबर कर लिए और अपना कपड़ा टखने से ऊपर कर लिए। जिंदगी में कभी कपड़ा टखने से नीचे नहीं लटकाए, जिंदगी में कभी अपने बाल उतने बड़े नहीं रखे। इसे कहते हैं सुन्नत की इत्तिबा करना, इसे कहते हैं हदीस रसूल पर अमल करना, जैसे ही सुने वैसे ही अमल करना। छोड़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अरे वो करने से पहले तू दुनिया से चले गया तो सुन्नत पर अमल कर भाई। सोचेंगे, देखेंगे, वो देखने से पहले, सोचने से पहले अल्लाह तुझे दुनिया से उठा लिया तो। एक बीड़ी छोड़ने होता नहीं हमारे नौजवान को, एक गुटखा खाना छोड़ने नहीं होता हमारे नौजवान को, एक सिगरेट, ये पान, ये जो भी नशेली चीजें हैं ये छोड़ो भाई। नहीं मौलवी साहब, एक कीच एक बार छोड़ा तो टेंशन आ जाता मौलवी साहब, बीपी बढ़ जाती, माइंड काम करता नहीं। वो काम करते रहने 20 सिगरेटा पीतो ना 10 पीले को आना पड़ता, बाद में और एक महीना 5, और एक महीने में 3, और एक महीने में 2, 20 घुटके खातू, 10 घुटके, 5 घुटके, 4 घुटके, एक महीना ऐसा कम कर ले एक आना पड़ता मौलवी साहब। एक की चक्कर छोड़ा तो फिट्स की बीमारी उठ को ऐंठ लक मरबत जा। तुम देखो, अच्छा मरता मर को जा, ऐंठ लक मरता मर को जा, अल्लाह तुझे जन्नत तो भी देता। वो छोड़ने से अगर तुझे फिट्स आता, अगर तुझे बीमारी आती, मर को जा, अल्लाह तुझे जन्नत तो भी देता। सहाबा को देखो जी, सहाबा को देखो जी, नबी का ऐलान मदीने के गलियों में होता है, ऐ मदीने वालों, अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दिया, आज से शराब हराम कर दी गई, आज से शराब हराम हो गई। पहले शराब हराम नहीं थी, शराब के अंदर फायदा कम नुकसान ज्यादा, बस इतना बताया गया था। दूसरा हुक्म यह आया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में रहो नमाज के करीब मत आओ। तीसरा हुक्म अल्लाह का आ गया, आज से शराब हराम, आज से नशा आवर चीजें हराम। जैसे ही कान में रकात पड़ी, जैसे ही आवाज पड़ी, पीने वाले साहबा पीते बैठे हैं घरों में, कान में आवाज पड़ी, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा, सुनने वाले जी ये बात सही का तो भी नबी बोले कि इनो बोल रही कि अब वो पीने का पी लेंगे, बाद में मस्जिद नबवी में जाकर इंक्वायरी करेंगे। ऐसा नहीं करे सहाबा, जैसे ही कान में आवाज पड़ी
किसी के मुंह पर प्याला लगा था, किसी के हलक में घूंट उतर रहा था, कोई जाम भर के दे रहा था, कोई जाम होठों से लगाया था। कुर्बान जाए उन सहाबा पर। क्या सुन्नत की इत्तिबा करते थे वो लोग, क्या सुन्नत की इत्तिबा करते थे वो लोग। जैसे ही मुंह को जाम लगा है, नबी का ऐलान कानों में पड़ा, मुंह से जाम निकाल कर फेंक दिए। जिसके मुंह में था हलक के नीचे नहीं उतारे वो सहाबा। कुर्बान जाए उन सहाबा पर, मुंह से निकाल कर थूक दिए शराब को। अल्लाह के नबी के सहाबा बयान करते हैं, उस दिन मदीने के गलियों में शराब के मटके बरसों बरसों के लाकर ऐसे फोड़ दिए गए, ऐसी शराब बह रही थी गोया उस दिन मदीने के गलियों में मूसलाधार बारिश आया हो, बारिश का पानी सैलाब की शक्ल में बह रहा हो। अल्लाह की कसम उस दिन कोई बारिश नहीं आया, लेकिन सैलाब सदा बारिश की शक्ल में उस दिन पुरानी शराब मदीने के गलियों से बह रही थी। इसे कहते हैं सुन्नत की इत्तिबा। इसे कहते हैं जैसे ही हदीस रसूल आ गई, जैसे अल्लाह का ऐलान आ गया, कुरान की आयत आ गई, हदीस रसूल आ गई, फौरन एक सेकंड भी देरी किए बिना अमल करना, इसे कहते हैं सुन्नत की इत्तिबा। आज हमारा नौजवान, छोड़ भाई ऐसा करना को भाई, सोचेंगे मौलवी साहब, देखेंगे मौलवी साहब, छोड़ेंगे मौलवी साहब। वो छोड़ने से पहले तू दुनिया छोड़े गया तो अल्लाह के पास क्या मुंह दिखाता रे बंदे। हलाल खोर जो मरेगा, शराब पीने वाला जो मरेगा, शराब खोरों में जगाया जाएगा। हलाल खोर जो मरेगा, हलाल खोरों में जगाया जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मेरा परवरदिगार हम तमाम लोगों को सुन्नत पर सही मानों में चलने, नबी की सीरत को अपनाने, सहाबा के नक्श कदम पर अपनी जान कुर्बान करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन।